Hello dear students, this is your Ananya ma'am. I welcome you all on the Rankers Anti platform with the sample question paper of biology, in which this series I am going to discuss about how to write your answers, like how to write your perfect answer. For that you will get the correctly fully marks. वहाँ पे कोई नंबर डिडक्शन होने के चांसेस नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे सारी सैंपल पेपर जो 2023-24 का सॉल्यूशन एज वेल एज द मार्किंग स्कीम को डिस्कस करेंगे कि व्हाट एवर द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर हिडन इन द क्वेश्चन यू हैव टू बी राइट देयर. ऑलराइट, इन योर आंसर बुक द मार्किंग स्कीम लाइक द मार्क was given on that point only, or if you are writing the unnecessary thing you will didn't give any mark, as well as उसका कोई भी मतलब नहीं होता. You will going to wastage your time if you are writing the unnecessary thing. So let's start with the different questions, like 1 mark question, 2 mark question, 3 mark question, 4 mark question and 5 mark question, and what are the different criteria, what are the different steps of writing the answers. So one by one let's start. 1 mark like in one word or one sentence type के question आपके आते हैं. So start with the questions. Question number 1. Generally, food is broken and absorbed within the body of organism in which one of the following organism is done outside of the body. Generally क्या होता है कि जो हमारा food है which is broken down and absorbed inside the body. लेकिन कुछ organism ऐसे होते हैं their foods are broken down outside of the body. That organism is called as the saprophytic organism, and that mode of nutrition is called as the saprophytic mode of nutrition. And example अगर हम लोग पढ़ते हैं saprophytic mode of nutrition के लिए, these organism are fungi. कौन से होते हैं बच्चा? fungi होते हैं. Among these, which one is the fungi? So let's discuss amoeba. Amoeba is the protistian unicellular eukaryotic organism, and their mode of nutrition is holozoic. हमें क्या ढूंढना है? हमें saprophytic ढूंढना है. सेकेंड ऑप्शन इज मशरूम. यस, मशरूम इज द फंजाई एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द saprophytic mode of nutrition. In the saprophytic mode of nutrition, the organism broken down their food outside the body, and after that it absorb it. After that it intake it. All right. So mushroom is the correct answer. What about the paramecium? Paramecium also perform the holozoic mode of nutrition. What about lice? This is the parasitic. One more thing, all these are follow heterotropic mode of nutrition. Clear? Let's move to the next question. Question number 2, which is also from your multiple choice questions. Receptors are basically which receive the signals. ठीक है, receptors are the which receive the signals from the stimuli from the outside, from the environment. This is called as the receptors. Receptor usually located sense organ. Yes, ये स्किन पे हो सकते हैं, या हमारे आई पे, नोज पे, टंग पे, ईयर पे, इधर जगह पे पाए जाते हैं. Gustatory receptor basically taste के लिए होता है. This is for the taste one. Are present on the, अगर taste हमें कहाँ पता चलता है बेटे? हमारे taste जो पता चलता है because of taste bud, and taste bud are present on the tongue. किस पे present रहती है taste bud? tongue पे. So option number 1 is the correct one for this. What about the nose, eye and ear? तो इनके पास क्या रिसेप्टर होते हैं? नोज हैव ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. ठीक है, जिससे आप स्मेल कर सकते हो. तो नोज हैव द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. आई के पास रिसेप्टर जैसा क्या होता है? इट हैव कोन एंड रॉड शेल which is pigmented cells present on the retina, जिसकी वजह से आपको विजुअलाइज होती हैं चीजें. तो कोन एंड रॉड सेल. What about the ear? Ear have phonoreceptors. Ear have the phonoreceptor. Ear की अगर हम बात करें, it have phonoreceptor, जिससे आप
साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाते हो, सुन पाते हो किसी चीजों को, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, जस्ट बिकॉज योर फोनोरिसेप्टर, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स। अगर आपका अच्छा अच्छा टेस्टी से खाना बना है उसको आप स्मेल कर पा रहे हो, उसकी स्मेल आपको अच्छी लग रही है, दैट इज योर बिकॉज ऑफ द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। एंड सेकेंड वन इज अगर आपको टेस्ट उस फूड का पता चल रहा है तो बिकॉज ऑफ योर गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर, इफ फार्मर वांट टू ग्रो, एक किसान है want to grow banana plants, क्या ग्रो करना चाहता है, बनाना प्लांट्स ग्रो करना चाहता है, जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट, जेनेटिकली सिमिलर ग्रो करना चाहता है, इट मींस कि क्लोनिंग, ठीक है, एक दूसरे का ये। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा दैट इज योर एसेक्सुअल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल, ओके, प्लांट्स इज ऑलरेडी अवेलेबल इन इस फील्ड, उसके फील्ड में प्लांट एक फील्ड है, उसके पास बनाना का प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब इससे ये बहुत सारे प्लांट ग्रो कराना चाहता है और वो सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर होने चाहिए, यानी कि वी डोंट नीड ए फ्लावर, वी डोंट नीड ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वी नीड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी सजेस्ट फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए हमें कौन सा मेथड सजेस्ट करना चाहिए। प्लांट है, बड़ा है, इसके किसी पार्ट से हम एक नया प्लांट ग्रो कराएंगे, दैट इज कंसीडर एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या हो जाएगा इसमें, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आइदर फ्लावर के अलावा किसी भी प्लांट से अगर हम नया प्लांट ग्रो कराते हैं दैट इज कंसीडर एज ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऑलराइट, अब ये बाकी और क्यों नहीं हो सकते, देखते हैं। रीजनरेशन, रीजनरेशन में ऑर्गेनिज्म ब्रेक होते हैं और नए पार्ट जो होते हैं वो उसका फॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल रीजनरेशन ऑकर इन द प्लानेरिया, किसमें देखने को मिलता है बच्चा, प्लानेरिया। बडिंग, बडिंग में एक नया ऑर्गेनिज्म कहीं बड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं, तो बडिंग ऑकर इन ईस्ट। इसके एग्जांपल्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चा, ईस्ट पढ़ते हैं एंड हाइड्रा। ऑलराइट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में पढ़ते हैं, जैस्मिन में होता है, सुगर कैन में, रोज में, ठीक है। इन दीज प्लांट्स वी परफॉर्म द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें तो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें सीड का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, तो क्लोनिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट इसमें पॉसिबल ही नहीं है, जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। और बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे वेरिएशंस आते हैं, हमें यहाँ पे वेरिएशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो वी कैन परफॉर्म द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ ए प्लांट इज, हाइट ऑफ ए प्लांट आइदर टी और स्मॉल टी, इसको हाइट ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको डीएनए रेगुलेट करता है कि जीन रेगुलेट करता है कि प्रोटीन। देखो वन मोर थिंग, डीएनए का जो कोडिंग सीक्वेंस होता है, डीएनए के पार्ट से जिससे कुछ नया फॉर्म्ड हो रहा होता है, जो कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पाता है, दैट इज कॉल्ड एज द जीन, ठीक है। और उस जीन से आपका बेटा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, और उस प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो हम देखते हैं, जो चीजें हम देख रहे होते हैं, जो कैरेक्टर्स हमें विजुअलाइज होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। सो हाइट ऑफ द प्लांट इज द कैरेक्टर, हाइट ऑफ द प्लांट इज द कैरेक्टर विच वॉज रेगुलेटेड बाय द जीन, ठीक है, विच वॉज रेगुलेटेड बाय द जीन। अब देखो यहाँ पे और कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, डीएनए विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ हार्मोन्स, नो। जीन विच रेगुलेट द प्रोटीन डायरेक्टली, ये भी नहीं, वो भी नहीं जो जीन डायरेक्टली प्रोटीन को रेगुलेट करता हो। ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय जीन, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द जीन लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स पर्सन आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज, वो डेली एक्सरसाइज करता है लेकिन उसने बहुत लंबे समय के लिए क्या लिया है, ब्रेक ले लिया, तो ब्रेक के बाद जब वो एक्सरसाइज करने आता है तो व्हाट ही हैज लाइक क्या उसको सफर करता है, ही सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स, उसकी जो मस्कुलर क्रैम्प्स पैरों में, हाथों में, इधर मसल्स वगैरह में बहुत क्रैम्प्स, मतलब बहुत दर्द होता है ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज सीजन। दिस
हैपन ड्यू टू, बहुत लंबे टाइम के बाद जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा जो मसल्स है उसमें क्या होता है बेटा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से जो हमारा ग्लूकोज है दैट इज ब्रेक डाउन एंड फॉर्म द लैक्टिक एसिड, बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन यहाँ पे हमें क्या होता है, क्रैम्प्स होते हैं. The lack of carbon dioxide and formation of pyruvate, no presence of oxygen and formation of ethanol. ये तो anaerobic respiration का example है, but formation of ethanols occur in the yeast. So this is not the correct answer for the muscles. Okay? Lack of oxygen and formation of lactic acid. Yes, oxygen की lacking होगी और वहाँ पे क्या form करने लगता है, lactic acid. Because of that we are suffer from the cramps. ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है. दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन. और ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल अननेसेसरी है, कुछ है ही नहीं इसमें. सेकेंड वाला स्टेटमेंट इज फॉर द ईस्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन. So option number C is the correct one. Next question. In 1987, an agreement was formulated by the United Nations Environment Program (UNEP) to freeze the production of. ये जो था ना, ये प्रोडक्शन किसके लिए बोल रहे थे कि क्लोरोफॉर्म का प्रोडक्शन आप कम करो, ठीक है, इसको कम करो और जिससे हमारा ओजोन डिप्लेशन कम हो जाएगा. इन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन भी सेट किया था कि अप टू 2000 तक हमारा क्या होना चाहिए कि मिनिमम, मतलब एकदम ना के बराबर, और यू कैन से नो टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन. ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज और इनसे एग्रीमेंट बनवाया था और इसको बनवा करके बोला था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन एकदम बंद होना चाहिए जिससे हमारा ओजोन डिप्लेशन नहीं होगा. तो दिस प्रोडक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ वाई शुड बी योर ओजोन. एक्स एंड वाई respectively referred here. Ozone no, CFCs and UV rays का नहीं होता है prevention depletion, sorry, CFCs and ये option number C is the correct one. So option number C is the correct one for these questions. Next question consists of two statement, assertion A and reason R. assertion based question है. assertion based question में आप अभी क्या करना है आपको कि properly क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट. प्रॉपरली आपको ये जो स्टेटमेंट्स देती है ना, इसको पढ़ लेना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टेटमेंट्स आर रिजम्बल्ड. ये वाला स्टेटमेंट 1 में दे दिया, बी वाला सी में दे दिया, सी वाला डी में दे दिया, कुछ इस तरीके से कभी कभी ये कर देते हैं. तो एक्चुअली हमारे प्रैक्टिस में क्या होता है, इफ assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion, then option number A would be the correct one. ये हमारे दिमाग में फीड रहता है, बिकॉज कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो यही चीजें दी रहती है स्टेटमेंट. लेकिन अगर स्टेटमेंट रिजम्बल्ड कर दे और आपने गलती से एक ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो रहा है, आपने बी लगा दिया बिकॉज ऑफ द ऑप्शन, देन यू विल गेट द 0 मार्क्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इसको प्रॉपरली एक बार क्वेश्चंस में जरूर पढ़ लेना कि व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, कहीं ये इंस्ट्रक्शन रिजम्बल तो नहीं कर दिया गया है. अगर रिजम्बल नहीं हुआ है देन इट इज ओके, अगर रिजम्बल हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स पुट करने हैं. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 असर्शन है. ओके, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं पहले. अगर ए ऑप्शन करेक्ट होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. असर्शन रीजन दोनों सही होना चाहिए, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए असर्शन का. तो ऑप्शन ए हम मार्क करेंगे करेक्ट वन. दूसरा क्या होना चाहिए भाई, assertion, both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. Then we will put the option B. यहाँ पे option A is true but R is false. Assertion is true but reason is false. तो यहाँ हम लगाएंगे C. दोनों ही false नहीं, A is false but R is true, तो हम लगाएंगे यहाँ पे D. Okay. So let's see. assertion क्या है आपका, probability of survival of an organism produced through sexual reproduction is more than that of the organism produced through asexual reproduction. Yes, this is the correct statement because यहाँ पे variations होते हैं और sexual reproduction में, और because of the variation
The rate of survival is increased as compared to asexual reproduction where variations does not take place. Okay, so option number, sorry, region इसके लिए क्या कहता है? Variations provide advantage to individuals for survival. Yes, variation is the main reason for the survival for the fittest. You can say कि who is the most like most healthy species, who have the variations, like who have the variations for the adaptation of this environment. इस इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने के लिए उसने अपने आप को चेंज किया हुआ है. अगर वो चेंज कर लिया है देन ही विल सर्वाइव द मोस्ट. ठीक है, ही इज द मोस्ट हेल्दी वन, ये हम लोग मान के चलते हैं. और इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? वेरिएशंस देखने को मिलेंगे और वेरिएशंस होंगे तो दीज आर द मोर फिटेस्ट फॉर दिस इन्वायरमेंट. So option assertion and region both are the correct and region is the correct explanation for the assertion. So option number A is the correct one for these questions. All right. Move to the next question. अच्छा, ये भी assertion region का question है. Biodegradable substance. Biodegradable substance are those substances which are able to degrade with the help of the microorganism. ठीक है. Results in the formation of compost and natural replenishment. ये बात सही है. It is due to breakdown of complex inorganic substance into simple organic substance. नहीं बेटा, complex inorganic organic ये तो non biodegradable वाले में होता है. Assertion is true बस region is false. इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन? This is assertion region, assertion is true बस region is false, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C. For this question option number C is the correct. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू ऑर्गेनिक पॉसिबल ही नहीं है. ऑर्गेनिक ब्रेक होगा तो ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक ब्रेक होगा तो इनऑर्गेनिक. ओके, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक में ब्रेक हो सकता है इससे इससे, नॉट कि इधर से इधर. ऑलराइट. Which of the following features related biodegradable substance? Which of the following features related to biodegradable? Biodegradable यानी कि जो बायोलॉजिकल माइक्रोब से डिकम्पोजर से ब्रेक हो सके. Breakdown by the biological process, yes, it is related. It remain inert, no. Persist of environmental for long time, no. यहाँ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक कर देंगे तो लॉन्गर टाइम के लिए कहाँ रह जाएंगे. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में लंबे समय के लिए रहते हैं. मे हार्म द इकोसिस्टम, नो. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज द करेक्ट वन. ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी दी है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की. तीनों प्रॉपर्टी किसकी है? नॉन बायोडिग्रेडेबल ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, दिस क्वेश्चन कैरी द 2 मार्क. ओके, बाकी सारे के सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन थे सब. ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसके पहले इतना बिक रहा था 1 मार्क के थे. तो अब ये क्वेश्चन 2 मार्क का है. अब यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम समझनी होगी. ये क्वेश्चन 2 मार्क का है. स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट. तो फ्रूट फॉर्मेशन में देखो, जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तो वी स्टडी द 3 इवेंट्स. वन इज द प्री फर्टिलाइजेशन. क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्री. ठीक है, देन हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन और आफ्टर दैट बेटा क्या पढ़ते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन तक हम लोग ये प्री फर्टिलाइजेशन तक हम लोग ये क्या पढ़ते हैं कि गैमेट फॉर्म हो गया, पॉलिनेशन हो गया. यहाँ पे बच्चा क्या पढ़ते हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट बनना. यहां तक हम लोग फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं. इसके बाद हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि जाइगोट के बनने के बाद क्या कौन कौन सी चीजें होंगी. तो जाइगोट के बनने के बाद लेट्स सी क्या क्या चीजें होंगी. पहला चीज जाइगोट में डिवीजन होगा. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं तो कम से कम आपको 4 पॉइंट्स इसमें लिखने होंगे और हाफ मार्क्स सारे पॉइंट्स में मिलेगा. अगर आप लिखते हो पहला पॉइंट्स कि कॉन्टिन्यूअस डिवीजन ऑकर्ड इन द जाइगोट.
क्या लिखते हो अगर आप? सेल डिवीजन occurred in zygote up to formation of embryo. ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 1/2 मार्क, हाफ मार्क। दूसरा चीज अगर आप लिखते हो भाई एम्ब्रियो बन गई, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सीड, नेक्स्ट वन इज द formation of seed from ovule, and ovule become hard and tough. The ovule covered become hard. Then you will get half mark. All right. What will be the next event बच्चा? नेक्स्ट इवेंट हमें ये देखने को मिलेगा कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। ओके, एंड और क्या देखने को मिलेगा हमें कि द फॉलिंग डाउन ऑफ accessory part में यू कैन से सेपल पेटल etc. ये सारे क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो अब देखो, फॉर दिस पॉइंट यू विल गेट हाफ मार्क्स, फॉर दिस पॉइंट यू विल गेट हाफ मार्क्स, फॉर दिस पॉइंट ऑल्सो यू विल गेट हाफ मार्क्स, एंड फॉर दिस यू विल गेट हाफ मार्क्स। अगर ये सिर्फ आप 4 पॉइंट्स लिख देते हो, ये चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये 4 पॉइंट्स लिखते हो, यू विल गेट द 2 मार्क्स कंप्लीटली। और अगर 2 पॉइंट्स लिखते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 1 लिखोगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइजेशन इन द मार्किंग ऑफ द CBSE। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the purpose of making urine in the human body? Name the organs that store and release. Okay, तो पर्पस क्या होता है हमारा यूरिन का? इसके भी आपको 2 पर्पसेस निकालने होंगे। पहला पर्पस ये होता है कि फॉर्मेशन लाइक रिलीज ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, एंड यूरिया। दूसरा ब्लड में से निकालना होता है, और स्टोरेज एंड रिलीज के लिए भी आपको क्या करना है? लिखना होगा। हाफ मार्क्स सब में मिलेंगे। सो लेट डिस्कस कि क्या क्या व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन। तो यूरिन बनाने का पर्पस क्या होता है? रिमूवल ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर कि पहला चीज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अगर आपने नाइट्रोजनस वेस्ट भी लिख दिया फिर भी यू विल गेट द हाफ मार्क्स। नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है, 1/2। दूसरा चीज कहाँ से रिलीज करोगे? फ्रॉम द ब्लड, तो ब्लड लिख दिया है आपने, यू विल गेट द 1/2 मार्क। ओके, आफ्टर दैट नेम द ऑर्गन दैट स्टोर एंड रिलीज द यूरिन। स्टोर कहाँ पे होता है बेटा? स्टोरेज के लिए वी रिक्वायर्ड द यूरिनरी ब्लैडर, एंड फॉर रिलीज रिक्वायर्ड यूरेथ्रा, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर के लिए हाफ मार्क्स, इसके लिए भी हाफ मार्क्स। द क्वेश्चन कह रहे थे 2 मार्क्स, आपको ये 2 मार्क्स प्रॉपरली मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी को, और आइदर इफ यू वांट दिस वन और दिस वन, व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल वेयर एज वेन्स हैव वाल्व्स, ठीक है। आर्टरी के पास थिक एंड इलास्टिक वॉल क्यों पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं बिकॉज आर्टरी के पास प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई फ्लो का होता है, कोलैप्स न कर जाए। और वेल्व्स इसलिए पाई जाती है बिकॉज ये प्रिवेंट्स करे कि एक ही डायरेक्शन में लाइक प्रिवेंट्स करे बैक फ्लो को और एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो पाए। बिकॉज ऑफ दिस द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल एंड द वेन्स हैव द वेल्व्स, ठीक है।
हम क्या लिखेंगे कि why do arteries have thick and elastic walls? Because the blood emerges from heart at very high pressure. ठीक है, you can say that for bearing these high pressure, for bearing this high pressure, प्रेशर को वियर करने के लिए आर्टरीज have thick and elastic wall. ठीक है, इलास्टिक वॉल्स. Whereas veins have valves, वेन्स के पास वाल्व इसलिए होती है बिकॉज, ये और का मैं ऑप्शन करा रही हूँ, बिकॉज to ensure that veins have valve to ensure that the blood flow in one direction only. One direction. ठीक है, ये आप लिखते हो यू विल गेट द 1 मार्क, ये लिखते हो यू विल गेट द 1 मार्क, टोटल 2 मार्क. आई होप मार्किंग इसकी आपको थोड़ा समझ में आ रही होगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, study the food chain of the below and answer the questions that follow. Okay, this one is the leaf is feed the caterpillar को खा रहा है कैमलियन, कैमलियन को स्नेक, स्नेक को मैंगोज. ठीक है, ये एक फूड चेन है. 1 2 3 4 5 ट्रॉपिक लेवल की एक फूड चेन है. कितने की है? 5 की. If the amount of energy is available at third tropic level 1 2 3, कैमलियन के पास 100 जूल है ना, यस, जूल एनर्जी है. देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल. ठीक है, इससे 10% ज्यादा, इससे 10% ज्यादा, यानी कि प्लस 10% और इसमें प्लस 10% ऐड करोगे, इसके पास कितनी एनर्जी मिल जाएगी? इसके पास जो एनर्जी हो जाएगी बच्चा, प्रोड्यूसर यानी कि लीफ के पास एनर्जी होगी 1 2 1 2, इतना जूल एनर्जी रहेगी प्रोड्यूसर के, 1000 जूल. तो चेक कर लो, इसका 10% निकालोगे तो इसके पास कितनी होगी? 1000 जूल. इसके पास अगर 10,000 है तो 1000, इसके पास 100. तो अगर इसके पास 100 है तो प्रोड्यूसर्स के पास कितनी होगी? 10,000. अच्छा, यही क्वेश्चंस अगर पूछ दे कि इसके बाद 2 ट्रॉपिक लेवल पे क्या एनर्जी बचेगी, तो यहाँ पे बच्चा कितनी हो जाएगी? स्नैक के पास 100 का 10 जूल और यहाँ पे 1 जूल एनर्जी बचेगी. ओके, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल? इतना जूल. देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल? तो कितना हो जाएगा? 10,000 जूल एनर्जी. इट इज पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉपिक लेवल. अच्छा, 2 मोर ट्रॉपिक लेवल कर देंगे अगर, तो उसके पास एनर्जी कितनी बचेगी? 1 का 0.1 जूल और इससे एक और ट्रॉपिक लेवल कर देंगे तो 0.01 जूल. ये तो बहुत ही कम एनर्जी है. पॉसिबल टू दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉपिक लेवल. जस्टिफाई योर आंसर. नो, this is not possible because a big no, because the energy is very less to survive. और दो ट्रॉपिक लेवल बढ़ाने का मतलब है कि कितनी ज्यादा कम एनर्जी है और इतनी कम एनर्जी में कोई स्पीसीज, कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सो यू कैन से दैट दिस इज लाइक, यहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि और 2 ट्रॉपिक लेवल बढ़ा करके हम एनर्जी को क्या करें, और 2 ट्रॉपिक लेवल बढ़ा करके हम
और ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, we are advised to take iodized salt in our diet by doctor, justify its importance in our body। okay, हम लोग डॉक्टर के थ्रू एडवाइस किए जाते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट लो, आयोडाइज सॉल्ट लो। क्यों? बिकॉज आयोडीन आर हेल्प इन, और आयोडीन सिंथेसाइज द हार्मोन दैट इज योर थायरॉक्सिन। ठीक है, किस हार्मोन को ये प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन। दिस क्वेश्चन कैरी द 3 मार्क्स, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बिकॉज आयोडीन सिंथेसाइज थायरॉक्सिन, यू विल गेट 1 मार्क, सीधे सीधे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि जस्टिफाइड इंपॉर्टेंस इन आवर बॉडी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पहला इंपॉर्टेंस होता है, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज इट्स रेगुलेट, it regulate carbohydrate, फैट, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए। दूसरा, और क्या ये फंक्शन परफॉर्म करता है? प्रोवाइड बैलेंस या बेस्ड बैलेंस, यू कैन से, टू अवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेटा आपने थायरॉक्सिन लिख दिया, सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, यू विल गेट 1 मार्क। रेगुलेट एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लिख दिया, यू विल गेट 1 मार्क। एंड बॉडी बैलेंस लिख दिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यू विल गेट 1 मार्क। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 पॉइंट्स में आपका फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और ए बॉय बीइंग बोर्न इन ए फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोग तो रट लेते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल, 50%। देखो, if there is no exceptions like another thing, so there is only 2 चांस। ठीक है, या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, इसके बाद और कोई चांसेस नहीं बनते हैं। तो 1 में अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए गर्ल या born a girl, that is the 50%, and the probability of born a boy, that is also 50%। कोई चांस बड़ा नहीं होता। अच्छा, ये चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? to explain it by the like chromosomal order of the male and female. So let's discuss about that with the help of the chromosome. So what is the chromosome number? The total chromosome number in male or female is the 46। ठीक है, तो देखो भाई, the total number of chromosome is 46। अगर हम पेयर में डिस्कस करें इसको, दिस इज द 23 पेयर, 22 + 1। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? 22 + 1। तो 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं, दिस इज कॉमन इन मेल एंड फीमेल, एंड वन पेयर क्रोमोसोम इज वैरीज। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वेरिएशन, किसमें? मेल फीमेल में। अच्छा, मेल में ये वन पेयर जो क्रोमोसोम होता है, ये बेटा हेमीजाइगस होता है। हेमीजाइगस यानी एक 1 इज एक्स, अनदर 1 इज वाई। और फीमेल की अगर हम बात करें तो इट इज लाइक सेम क्रोमोसोम। फीमेल में हम लोग देखते हैं एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसको मैं अलग कलर से कलर कर देती हूँ, दिस इज द ब्लू कलर वाला क्रोमोसोम फीमेल का, एंड ये वाला क्रोमोसोम मेल का है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉय और गेटिंग ए गर्ल फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम? तो आइदर हमने बोला कि 50%, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि कैसे 50% है। अगर एक वाला क्रोमोसोम इधर मेल का आता है, दूसरा एक्स फीमेल का आता है, इससे एक ही क्रोमोसोम आएगा ना, दोनों में से कोई भी एक्स आ सकता है, तो यू विल गेट द गर्ल चाइल्ड XS। ये क्या हो जाएगी? गर्ल। ठीक है,
इसका एक्स क्रोमोसोम आया और इसका भी एक्स क्रोमोसोम आया, ये वाला। तो ये आप भी इस केस में भी आप क्या मिलेगा, इधर पे गर्ल चाइल्ड मिलेगी। इसका वाई क्रोमोसोम आया, इसका एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स एंड वाई हो गया, दिस वुड बी द बॉय चाइल्ड, ठीक है। और इसका वाई और इसका एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई, दिस इज ऑल्सो ए बॉय चाइल्ड। तो टोटल हमारे पास जो प्रोजेनी बन रही है वो बेटा 4 बन रही है। टोटल जो हो रहे हैं कितने बन रहे हैं, 4। इसमें से 2 गर्ल एंड 2 बॉय, ठीक है। तो हाउ व्हाट इज द परसेंटेज, और व्हाट इज द परसेंटेज, ये भी हो जाएगा आपका 50% एंड दिस इज ऑल्सो 50%. The probability of getting a boy is the 50%. The probability of getting a girl is the 50%. ये दोनों गर्ल हैं और this two are the boys. Alright? तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको कि what is the probability, तो probability लिखोगे आप पहले, ठीक है, being a boy, justify your answer. तो probability लिख दोगे 50% boy 50% girl, you will get 1 mark, and for the justification you will make this flow. लाइक ये वाला आपको क्रॉसिंग करानी पड़ेगी, क्रॉसिंग करा के इसको एक्सप्लेन करोगे, यू विल गेट 1 मार्क ऑल्सो। सॉरी, दिस क्वेश्चन कैरी द 3 मार्क्स ना, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मिलेगा 2 मार्क्स। फॉर दिस एक्सप्लेनेशन यू विल गेट 2 मार्क एंड फॉर दिस परसेंटेज यू विल गेट 1 मार्क, ठीक है। और इस एक्सप्लेनेशन में आप क्रोमोसोम नंबर, डिफरेंट क्रोमोसोम, मेल और फीमेल के अलग अलग क्रोमोसोम, इन सारी चीजों को, अब ये भी आपको इधर हाफ हाफ करके मिलेगा। पूरा 2 मार्क्स कैसे मिलेगा, इधर इधर आप हाफ मिलेगा, ये आपने लिखा, इधर आपको क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, और ये आपने चार्ट बना दिया, ये भी हाफ मिलेगा। इस ऐसे करके आपकी मार्किंग स्कीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are the certain situation, analyze and describe its possible impact on a person. अच्छा, ये आपको एनालाइज करना है, दिस क्वेश्चन कैरी द 5 मार्क्स, ठीक है। तो given below are the certain situation, analyze and describe its possible impact on a person. ये सारी कंडीशन को एनालाइज करने हैं और इसके क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट बन सकते हैं, इसको हमें बताना है। तो पहला इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं कि पहला सिचुएशन क्या है। सिचुएशन इज दैट कि टेस्टिस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा, अगर ऐसा पॉसिबल टेस्टिस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, able to descend into the scrotum is embryonic development because कि the temperature of testis and the temperature of the body is varies, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, लाइक अगर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ये स्क्रोटम बाहर नहीं होता, अंदर ही रह जाता है बॉडी के अंदर, तो देयर इज ए ह्यूज अल्टरेशन या ह्यूज लाइक डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा किसका, स्पर्म का। तो यहाँ पे हमें what we have observed कि इससे क्या होगा अगर ये गलती से ऐसा हो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एडवर्सली, बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज the body, because the temperature is varies, because the temperature of testis and body के variations देखने को। नेक्स्ट, व्हाट्स डिफरेंस ऑफ ए मैन इज प्लग्ड। फर्स्ट डिफरेंस ये अगर प्लग्ड जाएगी तो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट डिफरेंस ये क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन कराती है। तो अगर ये स्टक्ड हो गई तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म transformation of sperm will stuck, or you can say will not transfer further, ठीक है। प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉन फंक्शनल, अगर ये नॉन फंक्शनल होती हैं तब क्या होगा,
अगर ये बच्चा नॉन फंक्शनल होती है तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, मीडियम प्रोवाइड करती है, ठीक है, सीमेन मीडियम प्रोवाइड करती हैं, तो ये मीडियम हमें नहीं मिल पाएगा, मीडियम प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, मीडियम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, एंड और नरिशमेंट भी नहीं मिल पाएगा. तो व्हाट विल हैपन, दे विल नॉट ऐड secretion and will not add secretion for the nourishment, कह सकते हो, add secretion for the nourishment, secretion for the nourishment and medium for the trans. ठीक है. नेक्स्ट है प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूटेरस ऑप्टिमली. प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूटेरस ऑप्टिमली. अगर प्लेसेंटा आपका डज नॉट अटैच टू द यूटेरस ऑप्टिमली, अच्छा, एग इज नॉट फर्टिलाइज इन ह्यूमन फीमेल. ओह, दिस इज द, इसका आंसर लिखा है ना हम लोगों ने. इसके बाद डी को देखते हैं. तो डी, एग इज नॉट फर्टिलाइज इन द ह्यूमन फीमेल. तो अगर इसमें आपका एग फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो द एग इज रिलीज विद द हेल्प ऑफ द म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन. ठीक है. एग इज रिलीज्ड with the help of the mucus and the blood. Placenta does not attach to the uterus optimally. तो अगर placenta attach नहीं है optimally, तो what will happen या what will observe कि यहाँ पे अटैच नहीं होगी तो नरिशमेंट, ग्रोथ, फीटस के अंदर फीटस को प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा इन चीज़ों का. Uterus optimally, fetus is not nourished. इसको नरिशमेंट नहीं मिल पाएगी, इसको मीडियम नहीं मिल पाएगा, फूड नहीं मिल पाएगा. ठीक है, ये कवर्ड होता है. नेक्स्ट और का क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन? A doctor has advised Samir to reduce sugar intake. अच्छा, रिड्यूस करना है, कम करना है सुगर इनटेक को in his diet to regulate exercise after checking his blood test report. ठीक है. Which disease do you think? तो डिजीज क्या हो सकती है, इसको शुगर इनटेक करने से लिए मना कर रहा है. इट मीन्स कि माइट बी द समीर इज सफर फ्रॉम द डिजीज. का नाम क्या होगा? माइट बी द डिजीज इज डायबिटीज. डिजीज हो जाएगी आपकी डायबिटीज. ठीक है. डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम, तो किस डिजीज से सफर कर रहा होगा? डायबिटीज से. नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज. द नेम ऑफ द हार्मोन्स, हार्मोन्स का नेम क्या लिखोगे? दैट इज इंसुलिन. एंड ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स, ऑर्गन कहाँ से प्रोडक्शन होता है इसका? पैनक्रियाज से. अगर आपने ये चीजें लिखी हैं तो 1 मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट बी पोर्शन देता है. ए के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे. विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन ए प्लांट एंड विच हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ. अच्छा, प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन. तो रैपिड सेल डिवीजन के लिए जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, द हार्मोन दैट इज द साइटोकाइनिन.
ठीक है, कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? साइटोकाइनेस। तो अगर आपने साइटोकाइनेस लिख दिया, यू विल गेट द 1 मार्क्स। एंड विच हार्मोन इज इनहिबिट, इनहिबिशन के लिए एबिस्किस एसिड, इनहिबिशन वॉच परफॉर्म विद द ABA, इसको कहते हैं एबिस्किस एसिड। ठीक है, तो द हार्मोन दैट इज द एबिस्किस एसिड, ABSCI। Next question. Oh, this is the last question. This is the last question and carry the 5 marks. तो यहाँ पे आप इसके 3 मार्क्स मिलेंगे, इसके 2 मार्क्स मिलेंगे और इसके पांचों को एक्सप्लेन करने के एक नंबर स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएंगे। तो आई होप यू विल गेट द पॉइंट्स कि आप कहाँ लैग कर रहे होगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझो। ठीक है, जितनी चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं उतना हमें कम से कम करना ही करना है। उससे बहुत ज्यादा करोगे तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा टाइम, और ये अननेसेसरी होता है। एक्स्ट्रा लिखने के लिए बोर्ड में नंबर नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। टू द पॉइंट चीजों को लिखने के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं, और ये भी पॉइंट्स हमारे क्या होने चाहिए, टू द पॉइंट चीजें होनी चाहिए, लाइक स्टेप बाय स्टेप जितनी चीजें पूछी है उतनी चीजें लिखनी होती हैं। ओके, के बाद ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। ओफ सॉरी, there is a blank slide, so I was confused. The figure A and D, A, B, C, D, E, F, A to D का अच्छा अभी तक पूछ रहा है। Given below represent the type of ear lobes. Ear lobe दो टाइप के होते हैं, either attached और free। ठीक है, अटैच रहेगा तो ये लोब्स होंगे, चिपके रहेंगे, ये देखने को मिल रहा है इधर देखो, ये वाला अटैच्ड है, और फ्री रहेगा तो कुछ इस टाइप से रहेगा, थोड़ा लटका हुआ सा रहेगा। ठीक है, जो पिन्ना है वो लटका हुआ रहेगा, तो लटका हुआ रहेगा तो दिस इज कॉल्ड, ये पिन्ना है, पिन्ना अगर ऐसे लटका हुआ रहेगा दिस इज कॉल्ड एज द फ्री ईयर लोब, और पिन्ना इस तरीके से चिपका है तो ये क्या रहेगा, क्या, अटैच ईयर लोब। टू चिल्ड्रेन, राहुल, निशा एंड देयर पेरेंट्स। राहुल एंड निशा क्या है, निशा एंड राहुल, दीज आर द टू चिल्ड्रेन, बाकी मदर फादर है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ईयर लोब ई एंड एफ दिया है। दिस वन इज, देखो दिस वन इज बेटा फ्री वन, फ्री, एंड ये देखो ऐसे है, दिस इज द अटैच्ड। Excited by his observation of different type of earlobes present in his family, Rahul conducted a survey of the type of earlobe. राहुल जो है एक सर्वे कंडक्ट कराता है अपनी फैमिली का। And his classmate, अच्छा अपने दोस्तों का भी कराता है। He found two types of earlobe in his classmate as per the frequency given below. जितने मेल थे और जितने फीमेल थे, मेल में फ्री ईयरलोब 36 है, अटैच 14 है, फीमेल में फ्री ईयरलोब 31 है, अटैच क्या है 19 है। यानी कि ये वाला तो डोमिनेंट होगा, ये इसके नंबर ज्यादा हैं, और ये क्या होगा, रेसेसिव होगा। जिसकी ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है पॉपुलेशन में, दैट कैरेक्टर इज द डोमिनेंट वन, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है दैट इज द recessive one. Let's move to the question. On the basis of the above data, answer the following questions. Which of the two characteristics, free earlobe or attached earlobe, appears to be dominant in this way? अच्छा, डोमिनेंट एंड रेसेसिव पूछ दिया, तो बेटा डोमिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, फ्री ईयरलोब, और वाई, बिकॉज it have high frequency in population. One more thing, ये जो मैंने वर्ड लिखा है हाई वाला, इस तरीके का सिंबल, यू आर नेवर ट्राई टू यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस सिंबल्स के नंबर नहीं मिलते। ठीक है, हाई को आपको हाई लिखना पड़ेगा, मैं लिख करके आपको बताने के लिए लिखा है मैंने, एफ हाई। Okay, next is the inheritance of the free earlobe linked with the sex of the individual? No, this is not linked with the sex. No. ठीक है, give reason for the your answer. भाई ये linked वाला नहीं होता, ये किस टाइप का, डोमिनेंट एंड रेसेसिव टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। क्यों लिंक नहीं है? अगर आइदर ये मेल में पाया जाता है या फीमेल में पाया जाता है, हम तब देखते हैं कि ये सेक्स लिंक कैरेक्टर है। बाकी हम ये क्या देख रहे हैं कि द फ्री ईयरलोब
earlobes are found in both male and female, both male and female as well. It means कि this is not the linked with the sex, या sex link characters के नहीं है. What type of earlobe is present in father, mother, Rahul and his sister Nisha? पीछे जाओ. Genetic constitution of each these family members which explain the inheritance of his characters in his family. Gene for free earlobe is represented by the F and gene of attached lobe is represented by the small f. अच्छा, one more thing, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में रहे होते हैं तो सबका आगे का जो प्रोजेनी है यानी कि निशा एंड राहुल, इन दोनों का क्या होना चाहिए था? फ्री ईयरलोब होना चाहिए. लेकिन हमें क्या मिल रहा है बेटा, ध्यान से देखो, हमें मिल रहा है कि राहुल के फादर जो है इनका फ्री है, राहुल के मदर का फ्री है, निशा का फ्री है, राहुल का अटैच है. यानी कि अगर डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर का जो रेशियो मिल रहा है इस क्वेश्चन में देखेंगे तो डोमिनेंट हमारा 3 है और रेसेसिव हमारा क्या है? 1 है, 4 में से. ठीक है, तो 3:1 जो रेशियो मिलता है ये हमारा जब हम लोग सेल्फिंग कराते हैं, याद रखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब सेल्फिंग कराते हैं तब हमें मिलता है F2 जनरेशन में. यानी कि आपके पास एक कैपिटल F और दूसरा स्मॉल f होना चाहिए. इसको क्रॉस करोगे कैपिटल F और स्मॉल f से, यू विल गेट कैपिटल F, कैपिटल F, कैपिटल F, स्मॉल f, कैपिटल F, स्मॉल f एंड स्मॉल f. ठीक है, इनमें से एक बच्चा जो है ये हो गया, दूसरा बच्चा ये हो गया और ये मदर हो गई, ये फादर हो गए, स्मॉल f. ठीक है, अगर गलती से आपने ये ले लिया होता कैपिटल F, लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये नहीं ले सकते आप. हमेशा क्या लोगे कि हेट्रोजाइगस लोगे. क्यों नहीं लोगे? अगर आपने होमोजाइगस मदर फादर दोनों का ले लिया भाई सारे का, तो फिर फ्री ईयरलोब होना चाहिए था, अटैच ईयरलोब आएगा ही नहीं देखने को. ठीक है, इसलिए ये नहीं लेंगे हम लोग. क्या लेंगे? ये. तो इसके मदर का, यानी इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इनके मदर, राहुल की मदर, राहुल का फादर, राहुल की सिस्टर निशा एंड राहुल खुद. क्या जीनोटिपिक होना चाहिए इनका? कैपिटल F, स्मॉल f, कैपिटल F, स्मॉल f, कैपिटल F, स्मॉल f, स्मॉल f, स्मॉल f. ठीक है, 3:1 का रेशियो ये फॉलो करेंगे. जीन ऑफ द फ्री ईयरलोब तो लिख लिया सबको. सुरेश, अच्छा और करके, सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयरलोब. अच्छा, सुरेश के जो पेरेंट्स हैं उनके क्या अटैच ईयरलोब है. व्हाट टाइप ऑफ ईयरलोब कैन बी सीन इन सुरेश एंड हिज सिस्टर सिया? अटैच ईयरलोब है, यानी कि ये हमेशा रेसेसिव कैरेक्टर होगा. इस और के लिए मैं बात करूँ दूसरे कलर से यूज कर लेती हूँ कि इफ दिस वन इज द अटैच्ड वन, अटैच्ड है और ये क्या है? रेसेसिव कैरेक्टर है. This one is the recessive character. Okay. So Suresh parents have attached earlobe. What type of earlobe can be seen in Suresh and his sister Sia? पेरेंट में अटैच ईयरलोब है, दोनों पेरेंट में, यानी कि ये मदर में भी होगा और यही फादर में भी होगा. तो भाई जब हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल f को स्मॉल f के साथ, तो सारे तो स्मॉल f मिलेंगे हमें. सारे क्या मिलेंगे? स्मॉल f. यानी कि उसकी सिस्टर सिया और सुरेश, दे बोथ हैव द अटैच्ड ईयरलोब, क्योंकि अटैच ईयरलोब इज द रेसेसिव कैरेक्टर. और अगर रेसेसिव कैरेक्टर को हम क्रॉस करेंगे रेसेसिव कैरेक्टर के साथ, और ये हमेशा कब एक्सप्रेस होते हैं? जब अपने होमोजाइगस के फॉर्म में रहते हैं तब. तो इनको जब हम क्रॉस करेंगे अपने रेसेसिव कैरेक्टर के साथ, तो वी विल गेट द रेसेसिव कैरेक्टर ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा क्रॉस कराओगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, तो आपको मिलेगा 5 नंबर. ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मार्किंग स्कीम होती है, कैसे आंसर्स लिखने. ठीक है,
और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।